اگر نہیں آتے. اور ایک حسین تمنا پیش کروں سب. کاش جاتے جو ہم مدینے میں، 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 لوٹ کے اپنے گھر نہیں آتے، لوٹ کے اپنے گھر نہیں آتے، میرے آقا اگر نہیں آتے، یہ اجالے نظر نہیں آتے. اور ہوتا ہے جس طرف بھی ذکر رسول، ہوتا ہے جس طرف بھی ذکر رسول، ہوتا ہے جس طرف بھی ذکر رسول، ہوتا ہے جس طرف ETV اردو پر اگلا پروگرام. ناظرین آداب، بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہنا. سب سے پہلے بلٹن کی ہیڈ لائنز. ہندوستان اور امریکہ کے بیچ ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو مراد کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے اتفاق. وزیر خارجہ سلمان خورشید نے اپنے امریکی ہم منصب جان کیری سے کی بات چیت. چدمبرم نے کہا بی جے پی ملک کے تمام طبقات کی نہیں کرتی نمائندگی. راہل کے وزیر اعظم بننے کا جتایا یقین. اروند کیجریوال کو شندے نے بتایا پاگل. وزیر اعلیٰ کیجریوال نے شندے کو بتایا تھا بدعنوان. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ریاست کی تقسیم کی پرزور طریقے سے کی مخالفت. تشکیل تلنگانہ کے بل پر اسمبلی مباحث میں لیا حصہ. اور سال 2005 سے پہلے کے تمام کرنسی نوٹس کو آر بی آئی لے گا واپس. کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کے لیے بینکوں سے رجوع ہونے کی اپیل. دیویانی کھبراگڑے کی تنازع کو لے کر ہندوستان نے پھر سے امریکہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ سلمان خورشید نے اپنے امریکی ہم منصب جان کیری کے ساتھ دیویانی کی مفرور ملازمہ سنگیتا رچرڈ کے خاندان کو ٹریفکنگ ویزا جاری کرنے کے معاملے پر تشویش جتائی ہے. سلمان خورشید اور ان کے امریکی ہم منصب جان کیری نے سوئٹزرلینڈ کے شہر مونٹریکس میں ایک گھنٹے تک بات چیت کی. شام کے بحران کے حل کے لیے جنیوا مذاکرات کے لیے دونوں سوئٹزرلینڈ میں تھے. دونوں ممالک کے سفارتکاروں کی امیونٹی اور مراد کے معاملات میں بھی ادارہ جاتی سطح پر مسائل کے حل سے کیری اور سلمان خورشید نے اتفاق کیا ہے. دونوں کی میٹنگ کے بعد ایک سرکاری اعلانیہ بھی جاری کیا گیا. کانگریس نے بھلے ہی راہل گاندھی کو وزیراعظم کا امیدوار نہ بنایا ہو، لیکن کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم کو یقین ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کے بعد راہل گاندھی ہی وزیراعظم بنیں گے. چدمبرم نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک کے تمام طبقوں کی نمائندگی نہیں کرتی. سوئٹزرلینڈ کے داووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ پی چدمبرم نے راہل گاندھی پر اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ نوجوان لیڈر راہل گاندھی میں وزیر اعظم بننے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں. چدمبرم نے کہا کہ اگر کانگریس دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو پارٹی نائب صدر راہل گاندھی ہی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے.
इस मौके पर चिदम्बरम ने बीजेपी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी के वजीर आजम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। चिदम्बरम ने सवाल किया कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने क्यों कभी भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि बीजेपी समाज के तमाम तबकों की नुमाइंदगी नहीं करती और मुल्क के कई इलाकों में इसका वजूद तक नहीं है। चिदम्बरम ने बीजेपी की पॉलिसियों पर भी तनकीद की और कहा कि इन पॉलिसियों से मुल्क के नजरियात बिखर कर रह जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से कहा कि किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल होने के आसार नहीं है और सियासी जमातों को अवाम का मुंतशिर मैंडेट हासिल होगा। अपने खिताब में चिदम्बरम दिल्ली में उनकी हिमायत से बरसर इख्तिदार आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल पर तनकीद करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सियासी जमातों पर मुश्तमिल जमहूरी मुल्क है और यहां कोई एक आदमी जमात से बड़ा नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर एक तबसरा हंगामे की वजह बन गया। हालांकि शिंदे ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनकी तरफ ही नजर आता है। दरअसल महाराष्ट्र के हिंगोली में एक मीटिंग से खिताब करते हुए सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि जब वो पुलिस में थे तो उनकी शादी के फौरी बाद उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अब एक वेड़े मुख्यमंत्री के धरने की वजह से उन्हें पुलिस एहलकारों की छुट्टियां कैंसिल करना पड़ी। और नाजरीन, हम आपको बता दें कि मराठी जबान में वेड़ा पागल को कहते हैं। पुलिस के खिलाफ हालिया धरने के दौरान केजरीवाल ने वज़ीर दाखिला शिंदे को बदउनवान और नाअहल भी बताया था। हनीमूनला जायचं होतं मला, ते बांद्र्याला खेरवाडी पोलीस स्टेशन म्हणून आहे, तिथं होतो. मला काय रजा मिळाली नाही. काल जसा मुख्यमंत्री वेळा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या. तसं त्यावेळेस शिवसेनेची दंगल चालू होती 70च्या दरम्यान आणि पोलीस खात्याने आमच्या डिपार्टमेंटने मुंबईमध्ये होतो, आमची रजा कॅन्सल केली. और उधर कांग्रेस ने केजरीवाल पर वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की रिमार्क पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उन्होंने वजीर दाखिला का बयान नहीं सुना है, ताहम इतना जरूर है कि सुशील कुमार शिंदे एक संजीदा लीडर है जिन्होंने हमेशा गरीबों और दबे कुचले लोगों की आवाज ही उठाई है। सुरजेवाला ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दे रखी है और उसे वो बखूबी निभा रहे हैं। लगता है कि केजरीवाल हुकूमत की हरकतों से कांग्रेस आजिज आ गई है। इस किस्म की खबरें हैं कि पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी हुकूमत से हिमायत वापस लेने के लिए रेफरेंडम कराने की बातें की जाने लगी हैं। इस बात की तस्दीक दिल्ली में पार्टी उमूर के इंचार्ज शकील अहमद ने कर भी दी है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि अभी इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी हुकूमत से ताईद वापस लेने का मन बना रही है। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान आम आदमी पार्टी और उसकी हुकूमत के रवैये को देखते हुए कांग्रेस के अंदर हिमायत वापसी की बातें की जाने लगी हैं। दिल्ली में पार्टी उमूर के इंचार्ज शकील अहमद ने इस बात की तस्दीक की है कि पार्टी लीडरों के अंदर केजरीवाल हुकूमत से हिमायत वापसी के सवाल पर रेफरेंडम कराने की बातें की जा रही हैं। पार्टी में ऐसी सोच कुछ लोगों की है कि चूंकि एक नया सिस्टम रेफरेंडम कल निकला है तो अच्छी बात है। कुछ लोगों का ये सुझाव है कि हम जारी रखें या नहीं जारी रखें, इस पर हम रेफरेंडम करावें, लेकिन पार्टी ने अभी अंतिम कोई निर्णय नहीं लिया है। हिमायत वापसी के ताल्लुक से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर लवली सिंह भी अब खुलकर बोलने लगे हैं। लवली सिंह मुस्तकिल किए जाने की मांग पर धरने पर बैठी टीचरों से मुलाकात करने पहुंचे। कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को मुस्तकिल करने का आम आदमी पार्टी ने चुनाव मंशूर में वादा किया है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। लवली ने कहा कि अगर केजरीवाल हुकूमत अपने चुनाव वादे पूरे नहीं करती है तो कांग्रेस की हिमायत जारी रखने का कोई जवाब नहीं है। उनसे हम रोड मैप लेंगे कब इनको पक्का कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने टाइम दिया था 30 दिनों में, 30 दिन तो पूरे हो गए हैं, तो हम जो है विधानसभा के और बाहर उनसे पूछेंगे कब इनको पक्का कर रहे हैं, हमें बताएं। नहीं करा जाता तो वो तो उन मुद्दों से और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से भागना है, और अगर वो अपने मैनिफेस्टो से भागते हैं तो फिर हमारा समर्थन का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता। केजरीवाल हुकूमत के वुज़रा के तनाज़ात में घिरने
और कांग्रेस और उसके लीडरों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के लीडरों के बयानात से कांग्रेस में सख्त नाराजगी है। अब देखना ये है कि ये नाराजगी केजरीवाल हुकूमत से हिमायत वापसी का सबब कब बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी तक आम आदमी पार्टी ने 1 करोड़ कारकुनों को पार्टी में शामिल करने का निशाना मुकर्रर किया है। पार्टी लीडरों ने निशाना हासिल कर लेने की उम्मीद भी जताई है। आम चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए एप्लीकेशंस भी बड़ी तादाद में मिल रही हैं। पार्टी लीडरों के मुताबिक दिल्ली से सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस मिली है। पार्टी लीडरों ने मुल्क भर की तकरीबन 200 सीटों के लिए 1700 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिलने का दावा किया है। फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 35,55,425 लोगों ने ज्वाइन किया है। एसएमएस और मिस कॉल के माध्यम से 10,80,000 लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है और वेबसाइट के माध्यम से 6,45,000 लोगों ने अपना ज्वाइनिंग किया है। कुल मिलाकर के 50,80,425 लोगों ने देश भर में अभी तक ज्वाइनिंग किया है। अभी ये अभियान आज के बाद से और तेज होगा। अभी तक लगभग 2600 फॉर्म्स तो हमारे पास आ चुके हैं और उसके बावजूद अभी लगभग 2000 से ज्यादा ऑनलाइन और लगभग 500 फॉर्म्स अभी हमारे पास पेपर फॉर्म में पड़े हुए हैं जिनको अभी हमें प्रोसेस करके देखना है। तो जो हम सोच रहे थे कि हम लिस्ट जारी करेंगे वो अभी हमें रुकना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं देख लेते कि किस स्थान से और कौन कौन से व्यक्ति ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हों और हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, हर एक व्यक्ति को देखना जरूर चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने असेंबली में तश्कील तेलंगाना बिल की पुरजोर तरीके से मुखालफत की। किरण कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश तश्कील जदीद बिल पर असेंबली मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश की तकसीम को बेहद नुकसानदेह बताते हुए तकसीम की तजवीज की सख्त मुखालफत की। तेलंगाना के अरकान के हंगामा आराई के बीच अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश की तकसीम के मसले पर बात करने को अपनी बदकिस्मती समझ रहे हैं। 2013 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2005 से पहले के करेंसी नोट्स को रद्द करने जा रहा है। बैंक ने 500 और 1000 के करेंसी नोट समेत 2005 से पहले के करेंसी नोट को वापस लेने का फैसला कर लिया है और इसके लिए 31/5/2014 की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी गई है। 1 अप्रैल 2014 से ये करेंसी नोट बाजार में नहीं चल सकेंगे। बैंक के इस इकदाम का मकसद काला धन और जाली करेंसी नोट को काबू में करना बताया जा रहा है। आरबीआई ने एक एलामिया जारी करके अवाम से अपील की है कि वो 2005 से पहले के करेंसी नोटों को 31 मार्च तक किसी भी बैंक में जमा कराकर नई करेंसी नोट्स हासिल कर ले। 2005 के बाद तैयार की गई करेंसी नोट की पुश्त पर निचले हिस्से में नोट की उजराई का सन तहरीर होता है, जबकि 2005 से पहले की बनी करेंसी नोट पर सन नहीं लिखा होता। इस तरह 2005 से पहले के नोट और उसके बाद के नोट में आसानी से फर्क देखा जा सकता है। मरकजी हज कमेटी ने 2014 का हज एक्शन प्लान जारी कर दिया है। हज कमेटी के मुताबिक हज 2014 की अमली सरगर्मियों का आगाज 1 फरवरी से हो जाएगा और पहली हज फ्लाइट 27 अगस्त को रवाना होगी। रियासती हज कमेटियों ने इस ताल्लुक से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एक रिपोर्ट। मरकजी हज कमेटी के हज प्लान के मुताबिक 1 फरवरी से फार्म दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा। 15 मार्च से कबल तक फार्म दाखिल किए जा सकते हैं। अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कुरान अंदाजी होगी और कुरान में चुने गए आजमीन को मई के अवाखिर तक रकम की किस्त जमा करनी होगी। आजमीन का पहला काफिला 27 अगस्त को रवाना होने की उम्मीद है। मरकजी कमेटी की तरफ से खाका जारी होते ही राजस्थान हज कमेटी हरकत में आ गई है।
स्टेट हज कमेटी का कहना है कि मरकजी हज कमेटी के रहनुमा खतूत की रोशनी में हाजियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएगी। ऐसा है कि हमको सर्कुलर सेंट्रल हज कमेटी से मिला है, उसके अनुसार हम हज के फार्म भरवाना और उनको जो कुछ भी उसमें सहूलियत दे सकते हैं पूरी सहूलियत हम हज हाउस में ही करेंगे और हाजियों को कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी। और 1 तारीख से 15 मार्च तक ये सिलसिला चालू रहेगा। पहले हमने मुसाफिर खाने में किया था इंतजाम, अब की बार हम हज हाउस में ही करेंगे और सारी सहूलियतें हाजियों को देंगे। इस बार हमने ये तय किया है हज कमेटी ने कि हम रोजाना ही जो भी आवेदन करने वाले हैं, जो भी आएंगे, उनके हम वहां पर आवेदन करने वालों का हम जो है मेडिकल ग्रुप, मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म भरना, सब काम हम वहीं पर ही हज हाउस में कराएंगे। रोजाना प्रतिदिन ये काम करा जाएगा 1 फरवरी से 15 मार्च तक। और वहां पर हमने आज ही हमारे चेयरमैन सलीम कारी साहब ने लेटर इशू कर दिया है सीएमएचओ को, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हज हाउस के अंदर एक डॉक्टर, एक टेक्नीशियन और अपनी टीम वहां लगाएं। राजस्थान स्टेट हज कमेटी ने इस साल पुरानी सहूलतों को जारी रखते हुए नई सहूलतें फराहम करने का भी फैसला किया है। राजस्थान में 35 अजला से तकरीबन 4,500 हाजी रवाना होते हैं। ईटीवी न्यूज जयपुर। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके से। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी से पाक माहौल में बाहमी तिजारती एजेंडे पर पेशरफ्त के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हम इस मकसद को जरूर हासिल कर लेंगे। सुजाता सिंह ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को मामूल पर लाने के लिए वसीउल नजरी की जरूरत है और ये पुरअमन माहौल में ही मुमकिन है। सुजाता सिंह ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में मरहलेवार रोड मैप तैयार है, ताहम पाकिस्तान की तरफ से जरूरी इक़दाम की जरूरत है। खारजा सेक्रेटरी ने वजीर कॉमर्स के हालिया ऐलानात का खैर मकदम किया। उन्होंने वाघा अटारी का कस्टम स्टेशन हफ्ते में 7 दिन खुला रखे जाने का भी खैर मकदम किया। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के कारगुजार हाई कमिश्नर को सरहद पार तिजारत पर रोक लगाने के मामले पर तलब किया है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस मामले को सिफारती सतह पर हल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ारत ख़ारजा ने इस अमर पर ताज्जुब का इजहार किया कि ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्विस अफराद की खातिर पाकिस्तान ने एलओसी पर तिजारत को यरगमाल बना लिया। वाज़ेह है कि कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से आने वाले ट्रक से 100 करोड़ रुपए मालियत की ड्रग जब्त की थी। उसके बाद से पाकिस्तान ने सरहद पार ट्रैफिक और तिजारत पर ही रोक लगा रखी है। of Pakistan was summoned by the Ministry of External Affairs. This was in connection with the recent stoppage of trans-LOC trade and bus services. Now, we find it surprising that for the sake of persons indulging in drug trafficking, Pakistan had chosen to hold hostage trans-LOC trade and travel, which brings immense humanitarian benefits to the people of Jammu and Kashmir.
ریلائنس فاؤنڈیشن ملک کے نوجوانوں میں تعلیم کو فروغ دینے میں مصروف ہے۔ فاؤنڈیشن کی طرف سے نوجوانوں کو تعلیمی وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ ملک بھر سے 4000 سے زائد طلبہ کو اسکالرشپ دی گئی ہیں۔ یہ تعلیمی اسکالرشپ پسماندہ علاقوں کے ہونہار طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 10,000 سے زائد طلبہ کو مالی مدد فراہم کروائی ہے۔ معاشی طور سے پچھڑے کئی ہونہار طلبہ کو اسکالرشپ سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ ان میں سے بہت سے طالب علم اب ایڈمنسٹریٹو سروسز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ विशेष महत्व रखता है, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि आपके लिए भी। आपकी ही प्रेरणा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के कारण ही ये बच्चे सफलता की इस शिखर को छू सके हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर भी ये बच्चे आपके दिए संस्कारों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में एक नया मिसाल कायम करेंगे। साधारण ही नहीं, असाधारण बनकर दिखाएंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मैं सोसाइटी के लिए यही अपील करना चाहूँगा, अगर आपको इसी कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो इसे डिसमोटिवेट ना हुए बल्कि और मोटिवेट हुए और सोसाइटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारतीयों को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारे साथ हम जितने बाकी लोगों को हमारे साथ हाथ पकड़कर जितने बाकी लोगों को ऊपर ले जा सके, हमें उतने जनों को सपोर्ट करके ऊपर ले जाना चाहिए। और स्पेशली फॉर द पुअर पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव टू हेल्प देम। कोस्टल एरिया है वहाँ, तो वे विलेज जैसा है, इतना डेवलपमेंट नहीं है, सिटी जैसा नहीं है, तो मैं वो डेवलप करने के लिए हेल्प करना चाहती हूँ। पंजाब के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान गुजरात के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। शाही इमाम की आमद के मौके पर गुजरात के बक्सर में एक जलसा भी रखा गया था। जलसे में मौलाना ने खत्म नबुव्वत के ताल्लुक से तफसीली रोशनी डाली। जलसा आम से खिताब के बाद पंजाब के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को लेकर उठे हैं, उनकी तालीमात इस्लाम ने 1400 साल पहले दी है। केजरीवाल जो है, जो इस पार्टी के प्रमुख हैं, जो ये काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने मुसलमानों को पहले बताया कि जो चीजें उन्होंने पेश की हैं, ये तो इस्लाम 1400 साल से कहता चला आ रहा है कि सादगी के साथ अपना वक्त गुजारें, गरीबों और मस्कीनों की इमदाद करें। तो ये सारी क्वालिटीज जो केजरीवाल ने पेश की हैं, वो इस्लाम की बातें लेकर उसने दुनिया के सामने पेश की हैं, तो इसकी वजह से लोग उसके साथ हो गए हैं। शाही इमाम का कहना है कि इस मुल्क में मुसलमान किराएदार नहीं बल्कि बराबर का हिस्सेदार है, लेकिन सियासी पार्टियां हमेशा ही मुसलमानों का इस्तेहसाल करती आई हैं। शाही इमाम ने अपनी तहरीक मजलिस अहरारुल इस्लाम के हवाले से कहा कि मुसलमानों को मुत्तहिद करना उनका मकसद है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो मुहिम चलाई है उसके तहत ये कहता हूँ कि मुसलमानों से कि भी बरेलवी देवबंदी का सारा किस्सा छोड़ के एक प्लेटफार्म पर आ जाएं, और इंशाअल्लाह ताला जब हम एक प्लेटफार्म पर आएंगे तो हिंदुस्तान में 150 पौने 200 MP मुसलमान जीत सकते हैं। और जब मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में आएंगे तो जिस पार्टी की भी सपोर्ट करेंगे वो पार्टी उनके बगैर हुकूमत पे नहीं आ सकती, तो हमारे जो है मसाइल हल हो सकते। मुसलमानों जैसे नाम रखकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियां अंजाम देने वाले शरपसंदों से भी मुल्क और मुसलमानों को चौकस रहने का शाही इमाम ने मशवरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज। शाम में जारी बहरान को हल करने के मकसद से स्विट्जरलैंड के शहर मोंटेरो में अमन मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। मोंटेरो इजलास में शाम के वज़ीर ख़ारजा वलीद मौल्लम समेत अमेरिका, बरतानिया और रूस के वज़ीर ख़ारजा शरीक रहे। मोंटेरो में मसले शाम पर मुज़ाकरात का आगाज करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा कि मीटिंग में शामिल वफूद के सामने पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं, ताहम इनकी मौजूदगी से शाम में क़याम अमन की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
शाम के कीमियाई हथियारों को तलब करने के मिशन में अमेरिका ने कलीदी रोल अदा किया और अब शाम में पिछले 3 साल से जारी खाना जंगी को खत्म करने और वहां क़याम अमन की कोशिशों में भी अमेरिका पेश है। बुध के रोज जब मॉन्ट्रियो में अमन मुज़ाकरात का आगाज हुआ तो अमेरिकी खारजा सेक्रेटरी को सबसे पहले इजहार ख्याल का मौका मिला। जॉन कैरी ने जमीनी हकीकत और आपसी मफाहमत पर जोर देते हुए कहा कि अमन मुज़ाकरात का मकसद शाम में बहाली अमन है जो वहां एक आर्जी हुकूमत कायम करने से मुमकिन है, लेकिन जॉन कैरी ने इस बात को दोहराया कि इस मुजव्वजा आर्जी हुकूमत में शाम के मौजूदा सदर बशार अल असद और उनकी हुकूमत में शामिल हुक्काम के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि असद हुकूमत की हठधर्मी की वजह से ही शाम में इंतहा पसंदी और तशद्दुद को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके नतीजे में शाम दहशतगर्दों को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच रहा है। जॉन कैरी ने कहा कि इस बहरान का हल जिनेवा करारदाद है जिसे आलमी बिरादरी की हिमायत हासिल है। We really need to deal with reality. Mutual consent, which is what has brought us here, for a transition government means that government cannot be formed with someone that is objected to by one side or the other. That means that Bashar Assad will not be part of that transition government. Make no mistake, it is the presence of the current intransigence within the existing government that makes this problem worse. That is creating a magnet for terrorists. There is another way forward. We all know it. It is the Geneva Communique, which has the support of the international community as a peaceful roadmap for transition. बरतानिया के खारजा सेक्रेटरी विलियम हेग ने भी जून 2012 की जिनेवा करारदाद की अहमियत को दोहराया। उन्होंने कहा कि शाम में एक आर्जी हुकूमत का कयाम ही मौजूदा बहरान का हल है। विलियम हेग ने मजीद कहा कि आलमी बिरादरी ने इसकी हिमायत की है। उन्होंने कहा, बीती शब इसराइली फिजाइया के हमलों में हलाक होने वाले 2 फिलिस्तीनी जवानों की तदफीन कर दी गई। हजारों पुरडम आंखों ने अपने दोनों जवानों को गजा पट्टी के शहर बैत लाहिया में उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया। यह जनाजा उन 2 फिलिस्तीनी शहरियों का है जो बुध की शब इसराइली फजाइया के हमलों में हलाक हो गए थे। इन महलूक फिलिस्तीनी जवानों की हलाकत पर हजारों आंखें अश्कबार हैं। गजा का शहर बैत लाहिया मातम कदा बना हुआ है। हजारों फिलिस्तीनी इसराइली हमलों के शिकार अपने 2 जवानों की मैयत को आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसराइल माजी की तरह इस बार भी महलूक फिलिस्तीनियों को इसराइल पर रॉकेट हमले करने का कसूरवार ठहरा रहा है। אנו רואים בחמאס אחראי לירי לעבר ישראל, ואם הוא לא ידע להשליט את מרותו על ארגוני הטרור הפועלים משטחו, נמשיך לפעול כדי לגבות ממנו ומהעוסקים בטרור מחיר כבד מאוד. इसराइली फजाइया के हमलों में हलाक होने वाले दोनों ही फिलिस्तीनी जवान गजा के शहर बैत लाहिया से थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में भी 2 फिलिस्तीनी जवानों की मैयतों की तदफीन कर दी गई। ये फिलिस्तीनी जवान 10 साल पहले इसराइली हमलों में हलाक हुए थे। इसराइल ने ये लाशें फिलिस्तीनी अथॉरिटी को लौटाई हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।
ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں، کسی ایک ایشو کے اوپر ایک ہو جائیں اور ان کی آواز کو بلند کیا جا سکے، یعنی مسلم قیادت کا فقدان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ ایک ہندوستان میں جو ایشو بنا مسلم